Revenant Esports क्या हुआ भाई लोग मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं वो चीज। You guys are living in a bubble, guys. ये bubble जल्दी burst होगा. प्लेयर के स्किल लेवल पे नहीं आपने उनके एम्बिशन पे अटैक कर दिया है भाई हाउ आर यू लाइकिंग असेंशन सो फार बहुत सारे प्लेयर्स सरप्राइजिंगली अच्छे खेले और लग रहा था कि जो लोग अच्छे खेलेंगे वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाए। No, I mean, for me, full sense, I've been watching for the last year or so, and I think they should win the event. But obviously, SPG is also playing well. I thought other teams will be able to counter them, but अब तक हुआ नहीं है. I hope full sense does it, because I think they are a counterable team. In terms of players, there are a few players which impressed me, but G का roster बन जाए उसके बाद मैं वो नाम बता दूंगा. Oh, okay, okay. So this is also a very interesting fact, by the way, guys. Ascension के बाद काफी सारे players इधर-उधर होने वाले हैं, and a lot of them will be available. So we'll talk more about that later. अब तक का favorite duelist कौन लगा है आपको? जॉन ऑल्सन। It's a tie between for me between Dambi and John Olsen. John Olsen, क्योंकि nice to see him constantly even frag out the way he does after playing for so many years. Dambi is far new, लेकिन I think I put them slightly on like a very close same level. I'm gonna say John Olsen as well. Dambi, while he's good on the neon, I don't think he's great on the other duelists as much. It feels like he's a one-trick neon. Like, not to say that that's a bad thing for the current meta. I will also say John Olsen. In fact, उसके टीम में even when he's not fragging वो एटलीस्ट स्पेस तो निकाल के ही दे रहा है and his teammates are also playing in a way कि वो कभी भी उसका डेथ वेन में नहीं जाने दे रहे हमेशा उसको ट्रेड हो ही रहा है फेवरेट कंट्रोलर पर्शिया। He's got clutches. His control of the game is really good, especially given कि उनकी टीम कौन से लेवल पे खेलती है उसने उस टीम को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखा है. So in that sense, Persia, and I would give a very close second, just on the basis of controller role, to Sultan. But I'm gonna say Papi Chulo Papi Chulo and maybe Persia, both of them. Papi Chulo because he was one of the saving graces of Neos and he performed individually performed really well, even though the team was they lost most of their games, right? Individually, he did really well in all those games. he dropped 36 ना एक गेम में. Yeah, मतलब वो टीम he डाउन था dropped तभी 36 उसने परफॉर्म करके दिखाया है। करके दिखाया है. जब हाँ. टीम जीत रही है Yes, तब परफॉर्म yes. करना इजी है, हाँ. पर जब टीम वो मैप Yes. उन लोग जीते बिकॉज पापी चुलो ने उतना मारा भी है. हाँ. अगर मुझे एक नाम देना होता मैं भी पर्शिया ही देता लेकिन फॉर द सेक ऑफ वैरायटी मेरे को फ्रांसिस पसंद आ रहा है व्हेन ही प्लेज हार्बर वो थोड़ा यूनिक लगता है मेरे को ऑलमोस्ट रैट लाइक गेम प्ले है वो छोटे छोटे गैप्स जो रह जाएंगे उसके वॉल में वो अब्यूज करेगा तो वो मुझे अच्छा लगता है मेरे को लगता है फेवरेट इनिशिएटर फेवरेट सेंटिनल ऐसा मर्ज कर देना चाहिए दोनों में से कोई भी एक बता दो जो आपको पसंद आ रहा है एनी इन्फो गैदरिंग कैरेक्टर हॉक्स ने तो परफॉर्म किया था। I'll say Grumble for his Oh, age and for yeah. his talent. Yeah. He's almost उसका स्टाइल ऑलमोस्ट नैक्स इश है हाँ. लेकिन फायर पावर उसका और भी ज्यादा है. सो आई वुड गिव इट टू ग्रम्बल. आई मीन ही वाज गोना बी माय पिक, तो अभी Yeah. इट्स द सेम आंसर. काफी बढ़िया परफॉर्म किया है भाई उसने। Now let's get to the meat of the topic. Let's get to the people that we care about the most. Revenant Esports. क्या हुआ भाई लोग? They was playing so well and then all of a sudden they were losing. What do you think went wrong? आरएनटी ना आरएनटी का Yeah. तो मैं बोलता हूँ कि वो लोग अडेप्ट नहीं कर पाए एसपीजी के सामने। उनके पास बहुत चांसेस थे अडेप्ट करने के, जो तरीके से साइट होल्ड करने को ट्राई कर रहे थे वो लोग बहुत सिंगल इंडिविजुअली खेल रहे थे, एज अ टीम नहीं खेल रहे थे। वो लोग में कॉम्स गैप था या फिर सोलो डिसीजंस लेके खेल रहे थे, मेरे को कुछ पता नहीं है इतना अंदर का। और मुझे लगता है कि उनका स्ट्रैट बुक उतना डीप नहीं है और बेसिकली वो लोग सिर्फ पकड़ा पकड़ी पे खेलते हैं, मैप में घुमाने को ट्राई करते हैं, लेकिन सामने वाले रिस्पेक्ट करेंगे तो वो स्ट्रेटेजीज काम आती है। लेकिन सामने वाले अगर रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, बेसिकली वो लोग अपने यूटिल पे खेलेंगे और यूटिल में आने के बाद चोक पॉइंट्स पे तुम लोग से फाइट लेंगे, तो वो सब काम नहीं करने वाला है। Universe, you look like you're holding in a lot. Like you look like तुम्हें बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन वो गुस्सा तुम शायद निकाल नहीं पाओगे। It's not gussa, more in the sense कि it almost felt like what they did in South Asia, especially in Icebox. Yeah, जब रॉसी को जेट पे डाला गया and he was playing on Icebox, especially in that final against TR, very daringly information based walk up where they go 3 mid or they push up 2B or they take information on A.
लेकिन पूरे टाइम पे उन्होंने उस आइसबॉक्स मैप अगेंस्ट एसपीजी आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ करने की कोशिश नहीं की. दैट योरू कॉम्प, आई हैड स्पोकन टू पैरा, ही सेड दे हैड अ सर्टेन गेम प्लान जो काम नहीं किया, लेकिन आई वाज स्टिल अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट इट. और इंफॉर्मेशन कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट दैट कि पैरा इज द अटैक पॉइंट, और वो कितनी बार मरा है अकेले सामने, नो सपोर्ट. और ये हुआ था एक और मैप में भी, आई फील अगेंस्ट डीएसजी, जहां पे देव गॉट दिस आइडियोलॉजी वेयर दे सेंड वन प्लेयर द ड्यूलिस्ट फॉरवर्ड अकेले, उसको कोई सपोर्ट नहीं है, यूटिल नहीं है, उसको बस वहां पे एंकर की तरह छोड़ देते हैं. एंड दे एक्सपेक्ट हिम टू समहाउ होल्ड दैट बाय हिमसेल्फ. अगर वो मर गया, उसके आगे चार बंदे आ गए तो साइड तो गया, फिर तब क्या करोगे. वो टीम की तरह जो उन्होंने लास्ट में वीसीएल एसए के लास्ट में किया था ना, आई फील लाइक दोस एक्सप्लोरेटरी टीम मूवमेंट्स वर जस्ट कंप्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट. They didn't go for map control as much as I saw them do in VCLSA. It almost seemed like they were giving too much respect to the opponent. See, I'll add on to what Universe said, right? Leaving the duelist alone is fine. You can play the duelist also as an anchor role. But the problem is you're leaving the duelist alone and he's playing in an aggressive position. So, it's either that the duelist Exactly. doesn't understand that when he's alone, what positions are you supposed to take? You can take Vera for example, right? They leave him alone a lot on DSG, but he'll always get you a kill or always, hold that space and fall back when he needs to, right? And that is something which I saw a lack of understanding in. Let's say you're talking about Ascent. If your jet is opping bottom mid or deep mid, right? There is always someone who will break the recon or try to break the drone for him or try to help him out, right? But when good players on jet are playing alone, you'll see them playing third mid, you'll see them waiting for the drone or the recon to get over and then mark, either right or left side of mid or take a deeper angle on mid. It feels like we are positioning in a way where we are not expecting the opponent to throw any util. Why will they not throw util? See, either it's the team prep which is done that way, or it's down to the mental of the players. Where you can see when we play in VCSA, people will take that space, fight aggressively, because maybe they're confident that they're better than the other players. But here, when the stakes are higher, I'm not gonna say it's easier to do it, but that means that the way maybe we have been practicing is wrong, or the way we have been seeing things so far has been wrong, because you can't at this point we can't just play a completely different game expect to win, because if it doesn't suit our players play style, it's not going to work out that way. What do you feel about all of them changing roles every now and then? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज़, क्योंकि जब भी बेस्ट ऑफ 3 मैच खेल रहे हो या फिर हाई स्टेक्स मैच खेल रहे हो और तुम एक रोल से दूसरे रोल में खेल रहे हो ना, तो आपका मेंटल भी स्विच होना चाहिए कि मेरे को ये रोल क्या बेसिस पे खेलना है. अभी अपने पास लोटस में सिंगल सेंटिनल खेल रहे थे, वो भी चेम्बर. चेम्बर को तुम लोग एंट्री के लिए भी निकालो, खिलाओगे, उसको एंकर भी कराओगे, क्या क्या कराओगे भाई उससे. ठीक है, रॉसी फिर चेंज कर रहा है, नेक्स्ट में बाइंड में वो खेल रहा है इनिशिएटर. अभी वो फ्रैक करने जाएगा या यूटिल यूज करने वाला है. अभी थर्ड मैप में खेल रहे हो, वो खेल रहा है अभी सेंटिनल साइफर खेल रहा है और डॉस9 ड्यूलिस्ट पे आया है. डॉस9 तो योरू ऐसा खेल रहा था कि जैसे वो जेट खेल रहा है, मिड पे खड़ा है, उसके साथ कोई है नहीं. अपने पास डबल सेंटिनल्स है, लेकिन डबल सेंटिनल्स दोनों अलग अलग साइड पे खेल रहे हैं. डॉस9 सोलो मिड पे क्यों खेल रहा है भाई? उसके पास फ्लैश है, वो सेंटिनल के यूटिल पे फ्लैश पिक कुछ तो करेगा ना भाई. मिड पे अकेला मरने का क्या जरूरत है उसको? गेम प्लान बना के आए हो लेकिन वो चल नहीं रहा है, तो एडेप्टेशन किधर है भाई? ये एडजस्टमेंट प्लेयर्स के थ्रू भी आ सकता है, कोच को ही बोलने का जरूरत नहीं है गेम के बीच में, मुझे लगता है. और ये बहुत सिंपल एडजस्टमेंट्स था. वो लोग सिर्फ गेम प्लान के ऊपर स्टिक किए. सामने वाले रिस्पेक्ट नहीं ले, क्यों देगा भाई रिस्पेक्ट? आईसो खेल रहा हूँ मैं, चिल लेके आएगा, फाइट लेगा ही लेगा. तुम लोग कुछ भी करने को ट्राई करो. और जितना अभी तक इन्होंने प्रैक्टिस किया, इंटरनेशनल टीम्स के साथ खेला है वहां पे जाके, 1 महीना 2 महीना जो भी थे वो लोग, तो इनको मेरे को लगता है अच्छा खासा प्रैक्टिस मिला है. ये लोग वो टाइम पे मोमेंटम खो दिए तो वो लोग को कमबैक करना आया ही नहीं. अब ये इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर भी आता है और एज ए टीम वो लोग कैसे खेल रहे हैं उसके ऊपर है. रोल्स की जब बात आती है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेयर्स मेरे दिमाग में. एजेंट्स कुछ भी हो, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू पुट इट दैट वे, बट कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग पैसिव होते हैं, राइट? अगर मेरे को अल्फायर को रोल स्विच कराना है और मैं उसको सेंटिनल पे डालता हूँ, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि वो सेंटिनल ट्रेडिशनल वे में खेलेगा पीछे पीछे से. वो फाइट्स लेने वाला है, वो अपना ड्यूल्स लेने वाला है. ही इज गोइंग टू कैच दोस पीपल ऑफ गार्ड, मे बी इवन किल 3, राइट? As long as the team knows that, as long as you guys know that those role switches are possible, but हाँ, वो प्लेयर के एबिलिटी को सूट करने चाहिए.
I genuinely feel like Rossi should have stuck to the Jet. Impact शायद ज्यादा रहता overall. हाँ If Rossi is on the Jet and the rest of the team, stuck to the roles that they were. क्योंकि DOS9 shifting again from when उसने खुद बोला कि वो Sentinel पे ज्यादा comfortable है. हाँ Sentinel से Duelist वापस चेंज कर रहे हैं. सुल्तान को भी Duelist पे डाल देता which वो जो भी हुआ. लेकिन then the Yoru comes into the mix on Icebox. When Icebox they had a very strong start against Churripas का जो Icebox था और ये जो Icebox था against SPG, like two different stories, fully two different stories. So none of you guys like the idea of the role change, especially someone like Rossi, जो मतलब शुरू किया था his career with Jet and all the flashy kills, then he went on to Initiator when I think last year तक वो Initiator खेल रहा था, and then ये साल he's trying Sentinel as well. Do you think it makes him a more versatile player, कि does it just take away from his ability to do one thing really well? देख, एक एक चीज़ होता है कि मैं सब एजेंट्स खेल सकता हूँ, और एक चीज़ होता है कि मैं परफेक्टली कौन से कितने एजेंट्स खेल सकता हूँ. Hmm. तो वो चीज़ होना चाहिए ब्रो, कि अगर उसके टीममेट्स कोचेस उसको अगर गाइड नहीं कर रहे हैं कि तू जो मिस्टेक्स कर रहा है ये रोल पे, उसको अडाप्ट करना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम तेरे को नहीं करना है वो चीज़ें. हर एक रोल अलग तरीके से खेला जाता है, भले ये FPS गेम हो, लेकिन वो क्लच टाइम में तू तेरे को जैसा खेलना है वो ऐसा खेल सकता है, लेकिन तेरे टीममेट्स अलाइव है, जो रोल पे तू है, जो एबिलिटीज से तू हेल्प कर सकता है, वो तो चीज़ें करनी चाहिए ब्रो. वो अगर नहीं करेंगे तो नहीं चल सकता अलग अलग रोल पे वो बंदा, कोई भी, पर्टिकुलरली रॉसी नहीं, कोई भी. For me, I think also that that role change with Rossi, like I get the Sentinel thing, but I had a massive problem with Chamber. I feel like Chamber is, especially not even the updated Chamber, it was a Chamber in the previous this thing, right, patch. वो सारा util खुद तोड़ हाँ, रहा खुद ही था. तोड़ He रहा है was किसको breaking the flashes. He was breaking, yeah. मतलब वहां पे कोई तो हो उसके लिए, या तो वो एजेंट चेंज करके उसको साइफर खिलाते वहां पे, या तो उसको जेट पे डालो ताकि वो खुद निकल सके इंस्टेंटली, क्योंकि जेट इज एन इजियर गेट आउट एंड मच मोर रिलायबल एजेंट फॉर रॉसी, बिकॉज वहां पे यूटिल नहीं उसको यूज करना पड़ेगा ज्यादा, एक्सेप्ट फॉर द डैश ऑब्वियसली एंड द स्मोक्स व्हिच इज वेरी वेल वर्स्ड. Him being a chamber or anyone being a chamber doesn't necessarily mean कि वो upfront duel starting में लेना ही है. पग में जैसा खेल रहे थे वैसा वाला चेंबर हाँ, खेल के मतलब नहीं है ना. मतलब वही आई एम सेइंग कि आजकल क्या, ये लास्ट ईयर का है. लास्ट ईयर ही हाँ, एक्सक्यूरेट जब चेंबर खेल रहा था, ये वैसे ही शो खेल रहा था. मल्टीपल डिफरेंट वेज ऑफ हाउ he can play the agent, कौन से स्पॉट्स खेल सकता है. I didn't feel we did that there. We didn't make them uncomfortable. उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका एरिया लेना है, उनको लेने अपन दे रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे उनके यूटिल को, नॉट जस्ट डीएसजी. आई थिंक वो रिस्पेक्ट वाला पार्ट तो अगेंस्ट एवरी अपोनेंट दैट दे फेस्ड हुआ था. I mean रैपिड लोफाई के सामने नहीं था उतना. वो रैपिड तो लोफाई भी खुद मतलब मिस्टेक्स कर रही थी, वो अलग बात है. रैपिड लोफाई अपन को स्पेस दे रही थी अच्छा खासा. हाँ, मतलब वो रैपिड लोफाई के हमने वो प्रेशर ही नहीं था ना, क्योंकि वो टीम हम्म ने वो रिस्पेक्ट हमसे डिजर्व ही नहीं की, मतलब कि हाँ हम कर सकते हैं कुछ. Right? We need to test the opponents out and then maybe give them a certain level of respect or change a few things. What do you think will happen to the futures of their careers, all the people in R&T? What do you think future has जो in लोग store ने for them? परफॉर्म किया उनको ऑफर्स आएंगे, जो लोग ने नहीं किया उनको मैं ऑफर्स शायद मैं से नहीं आएंगे, नई मैं टीम्स बनेंगी. एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर ऐसा ही चलता गया ना तो 5 साल में भाई वैलोरेंट खत्म. में टीम्स ही नहीं रहेंगी. 5 साल भी मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूँ. I'm gonna say 3 to 4 years. Right, and it's on to all the rest of the players also to step up. If you guys don't take the game seriously, please don't play it. Okay? Hmm. And like even with org, if you are getting some younger players, don't expect them to win on day one and then when they don't change the roster every 3 months. Right? You guys are not doing yourself any favor. पर एक recurring fact ये आ रहा है कि every import is doing better than every Indian player. Right? And that is not just stats wise. Even when I'm looking at gameplay, when I'm looking mechanically, right? वो दिख के आ रहा है. क्यों है वैसा? खून नहीं खोलता है क्या? मैं इंडिया में जब हम लोग खेलते थे, हम लोग का नहीं लेंगे, हम लोग बाहर का प्लेयर जिनको लेके आना है लेके आने दो, हम लोग हराने ही वाले हैं हमको. वी नीड टू बी एबल टू हैव अ चैंपियंस माइंडसेट. यहाँ हाँ, पे कुछ लोग स्टिक करते हैं, पर मे बी दे डोंट हैव द राइट गाइडेंस. कुछ लोग स्टिक नहीं करते, कुछ लोग जुम्मा जुम्मा टीम बदलते. मतलब क्या चलता है मेरे को नहीं मालूम. एंड जो सैटरडे कल्चर है वो तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आता है. राइट? एंड
So, I mean, like it's a sport, guys. It's a game. Treat it with the respect it deserves. हाँ मैंने खेलना इसके लिए छोड़ा क्योंकि मेरा दिन में 14-15 घंटा डालने का मन चला गया। अगर 6-7 घंटे ही डालने ना जैसे बाकी लोग डालते हैं, आज भी मैं इंडिया में या इजी कहीं पे पीजी। खेलता रहता था। ठीक है, पर मैं वैसा हूँ नहीं। आई डिडंट वांट टू बी डिसलॉयल टू द गेम एंड बी लाइक हाँ ठीक है, बाकी लोग जितना डाल रहे हैं मैं उतना ही डाल के सर्वाइव तो कर ही लूंगा, पैसे कमा लूंगा। पैसे कमाने के लिए अगर खेलना ही है तो फिर क्या ही पॉइंट है। इट्स लाइक इवन द यंगर जनरेशन नीड्स टू स्टेप अप। उनका गोल होना चाहिए जो अभी करंट टीम्स है उनको हराना। ऐसा नहीं कि हाँ जो पहला ऑफर आता है चलो चले जाते हैं। बहुत सारा यही लाइक आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम अ टीम ऑफ 5 people केम अप हु nobody knew and they won an event। ठीक है, सीएस में हुआ था। और अभी वैलोरेंट में मेरे को याद नहीं है कब हुआ लास्ट ऐसा। कौन सी ऐसी टीम थी जो इंडिया में टियर 1 इवेंट जीती विच नो दे वर यंगस्टर्स एंड नो वन न्यू अबाउट देम। अगर कोई बता सकता है तो बता देना मेरे को इफ आई एम रॉन्ग। नहीं ना ब्रो, क्योंकि थोड़ा भी अच्छा खेलने लगे तो मेरे को सैलरी चाहिए। क्या सैलरी कितना है ब्रो मेरा? कितना मिलेगा तो ही आऊंगा मैं। और ऐसा ही चल रहा है अभी। एक तो जैसे ही टीम में जाते हो ना वो टीम में जाके खुश हो जाते हैं, हाँ चलो आई हैव मेड इट नाउ, टॉप 4 वीसीएस है। क्या भाई कौन से आर यू गाइस आर लिविंग इन अ बबल गाइस। ये बबल जल्दी बर्स्ट होगा। आज तुम्हें जितना भी मिल रहा है 1 लाख 2 लाख, ठीक है तुम लोग खेल रहे हो, टॉप 4 आया मैं, अरे टॉप 2 भाई इंडिया में टॉप 4 आना, कुछ नहीं टॉप है। 3 आना। मैं अभी अनरिटायर होके 4 लोग हम लोग लेके बैठ के खेलेंगे ना विदाउट प्रैक्टिस तो भी आ जाएंगे। भाई मत करो, दैट इज नॉट एन अचीवमेंट गाइस, इट इज नॉट। प्लीज इंप्रूव योर ड्रीम्स और एस्पिरेशंस। ये क्या है ये? गोल्स ही नहीं है भाई, गोल्स ही वही है वीसीएल ऐसे जीतना है बस। उसके बाद कुछ शिट। नहीं है तो क्या ही कर भाविन सकते हो। भाविन आपने ना मतलब आ, प्लेयर के स्किल लेवल पे नहीं, आपने उनके एम्बिशन पे अटैक कर दिया है भाई। नहीं वो सच्चाई है। सच्चाई एंड है इवन टू द दिस इज ऑर्ग्स दिस भाई। ये मेरे को इसीलिए पसंद है। एक लास्ट चीज ऑर्ग्स के लिए भी, यू आर पेइंग द प्लेयर, यू डोंट ओन द प्लेयर। ठीक है, हाँ तो एंड सेकंड चीज, डोंट एक्सपेक्ट एनी प्लेयर यू टेक टू गिव यू रिजल्ट्स विद इन अ मंथ। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। हैव अ प्रॉपर सिस्टम, हैव अ गुड कोच। तुम्हारे ऑर्ग का क्या वैल्यूज है, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अ प्लेयर, वैसे ही प्लेयर साइन करो ना जो वो प्लेयर से एक्सपेक्ट कर रहे हो। राइट, मे बी द रोड इज अ बिट लॉन्गर, 2 महीने की जगह 6 महीने 3-4 महीने लगे। एंड आई अंडरस्टैंड इट्स अ परफॉर्मेंस इंडस्ट्री, बट फिर वो इट इज स्टिल बेटर देन साइनिंग अ प्लेयर कमिंग फोर्थ एंड देन साइनिंग समवन अगेन। राइट, हैविंग अ 2 year plan is better than remaking the team every 2-3 months। Right, so like it goes both ways, right? We need to be honest with what we want from the season, honest with what our goals are, honest with how we want to play। And I understand our perspective say that they invest money, they are expecting returns. I don't even for a second doubt them, but at the same time then see whom you are signing as well and what to expect from them। Right, you can't sign someone and then be like अरे मैंने तो सोचा ये ऐसा करेगा। तो that is something where I feel sometimes the orgs don't do scouting properly or don't just वो look तो at है ही नहीं ब्रो अपने इधर, वो तो है हाँ ही मतलब नहीं। स्टैट्स देके आ रहे हैं, ये तो क्या stats स्काउटिंग देख बढ़िया के तो खेला भाई लास्ट मैच, स्टैट्स इसको देख ले के ले। बस। आई थिंक मैं बहुत बोल चुका हूँ, अभी इससे आगे मेरे को कुछ बोलना नहीं है, बाकी सबकी अपनी मर्जी है। ओके। हमेशा याद रखना, अगर तुम इस इंडस्ट्री में पैसे कमाने के लिए प्लेयर बन रहे हो तो प्लीज इस तरफ आओ ही मत। किसी भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कभी मत जाना अगर तुम्हारा गोल सिर्फ कि हाँ मैं खेलूंगा तो पैसे मिलेंगे, ये प्लीज कभी मत करना। The only reason you need to be here is if you feel like you can be the best, because those are the players we need. Those are the players we can send and will by themselves deservedly go to the international stage। हर एक इंपोर्ट इस वक्त जो इंडिया में आया है या फिर इंडिया से कनेक्टेड भी रहा है, वो इस वक्त कहाँ है देख लो, क्योंकि वो खुद अपने स्किल पे पहले इंप्रूव करते हैं, पैसे को बाद में देखते हैं। तो वो मेंटालिटी पहले सोच के रख लेना, क्योंकि फौजिया इरेजर कोच भी जो जी के कोच रहे हैं, ऑटम टिक्स, एड्रेन किंग, और कितने नाम है भाई, बहुत सारे नाम है जो मैं नहीं ले सकता हूं, जो इस वक्त इधर टॉप ऑफ असेंशन की टीम्स में खेल रहे हैं या फिर टॉप ऑफ द रीजन जो पे अच्छी टीम्स में खेल रहे हैं, या तो वो ऐसे टीम्स में खेल रहे हैं जो कि टीयर 1 पे। तो दैट्स अबाउट इट। ना भाविन, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट ब्रिंग अप किया था कि टीम जब स्काउट करने ही लगती है उनका अप्रोच गलत रहता है। टीम बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट? In my head, the IGL and the head coach, अगर assistant coach है तो assistant coach भी, but they need to be on the same page
and they need to be people you trust as an organization. I'm just giving this as an example, right? कल अगर अन्ना ने अनुज और डैव को हायर किया था, राइट, ही इज ट्रस्टिंग देम, राइट. अभी अन्ना अनुज और डैव को जाके नहीं बोलने वाला है, अरे तुम लोग किल्लुए की जगह साइफर क्यों नहीं खेल रहे हो, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो. I 99.99% आई एम श्योर दैट इज द केस. पर अगर कोई ओनर ऐसा कर रहा है तो प्लीज डोंट, देन यू आर नेवर गोना बी, कुछ नहीं होने वाला उससे. पर टू ब्रिंग अप दैट पॉइंट, राइट, हैव दैट लीडरशिप ग्रुप यू ट्रस्ट, राइट, एंड बिल्ड ऑन द प्लेयर्स अराउंड दैट. पर उसके पहले भी आता है मेरे दिमाग में कि तुम्हारे क्लब का आइडेंटिटी क्या है. हाँ, तुम लोग को ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो यंग हो पर हार्ड वर्किंग हो. तुमको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो सुपरस्टार्स है, सो दैट यू कैन कैपिटलाइज ऑन योर ब्रांडिंग, योर मार्केटिंग, एंड बीइंग द बिगेस्ट ब्रांड आउट देयर. एंड अगर रिजल्ट्स थोड़े ऊपर नीचे भी हुए तो भी चलेगा, ओके. तुम लोग को ऐसे टीम चाहिए जो यू नो long term में stick करे, and you want to win the title over the next 2 years, and these are the qualities you are looking for in a player, regardless of if they are young or experienced, okay. तुम्हारा विजन ऐसा है कि प्लेयर्स का पर्सनालिटी टाइम मैच होना चाहिए, तो यू विल डू अ साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड बेस बिल्ड द टीम बेस अराउंड दैट, ओके. कुछ तो होना चाहिए ना मेरे हिसाब से. इफ यू बिलीव इन द कोच एंड द आईजीएल हो गया, जो भी लीडरशिप ग्रुप है, right, then it becomes a much easier job for you to implement that vision as well along with whoever that is. प्रॉब्लम ये होती है इंडिया में, काफी टाइम ऐसा होता है पहले प्लेयर्स आ जाते हैं फिर कोच आता है. तो हाँ, अब प्लेयर को नहीं खेलना, मेहनत नहीं करनी, या वो प्लेयर बोलता है मेरे को adaptable, ये कोच चाहिए, वो कोच चाहिए. हाँ, या वो अडेप्टेबल नहीं है. अभी पहले का टाइम समझ में आता था जब टीम्स पहले से बनी हुई थी और कोचेस नए नए आए थे कि मतलब हाँ, अभी लाते हैं, चलो अभी बजट आया है कोच का तो ठीक है, समझ में आता है. पर अभी ऐसा नहीं है, अभी एवरीवन इज गेटिंग अ कोच, राइट. तो जब तुम कोच को ला रहे हो पहले, देन ही नीड्स टू बी द वन बिल्डिंग द रोस्टर. आई मीन, इफ यू डोंट वांट हिम टू बिल्ड द रोस्टर, दैट इज आल्सो फाइन, दैट इज योर क्लब्स फिलॉसफी. देन एट लीस्ट हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम अबाउट द प्लेयर्स यू आर पिकिंग अप, राइट. इट गोस एनी, मैं बोल रहा हूँ कोई भी तरीका करो, पर एक खुद के पास एक बात होना चाहिए, क्योंकि फिर देयर इज इवन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. ओके, वी टुक दिस पाथ, maybe it didn't work out for us, next year let's try trusting the coach and the IGL a bit more. Or we took this path, these are the reasons it didn't work out for us, you know. तो अभी अगर मैं कोई भी जन को पूछूंगा कि क्यों नहीं जीते, अरे नहीं रे, प्लेयर्स चौक कर गए, या तो और मेहनत कर सकते थे, या तो ये ऐसा नहीं हुआ. मैं कोचिस को पूछूंगा, अरे मैं ये टीम में आया, मेरे को बोला भी नहीं कौन से प्लेयर्स है, मेरे को लास्ट मिनट पे बताया गया, आई वाज जस्ट लीडिंग द टीम. एग्जैक्टली. प्लेयर्स को मैं बोलूंगा, अरे हम लोग को पता भी नहीं था हम लोग कौन से प्लेयर्स के साथ खेलने वाला है, ये चूतिया प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, ये कोच है. तो कोई भी खुश नहीं है, ठीक है. वो सब जगह से ब्लेम बिल्डिंग हो ही रहा है, और राइट. ये सब है. चल, ये सब प्रॉब्लम्स है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि प्लेयर्स, कोच, मैनेजर, जो भी है, टीम को देख रहा है, ठीक है, ये लोग आपस में बैठ के बात क्यों नहीं करते हैं कि ये रिजॉल्व क्यों नहीं होता है कि कोई प्लेयर प्रैक्टिस पे नहीं आ रहा है, कोच अपने को सॉल्यूशंस नहीं दे पा रहा है, आईजीएल ढंग से कॉल्स नहीं कर रहा है. क्यों हो रहा है ये सब प्रॉब्लम्स? रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहे टीम के अंदर? जब भी टूर्नामेंट आता है, टूर्नामेंट में हारते हैं, उसके बाद ही के ये रीजंस बाहर आते हैं. ये रीजंस तुम लोग को पहले से पता रहेंगे ना, प्रैक्टिस के टाइम भी, तो ईगो रिजॉल्व कर लो इश्यूज वो सब. ईगो अभी होता है क्लियरली क्यों नहीं बात करते हैं? और मुझे ये भी पता है कि अगर ऐसा किसी ने किया रहेगा, तो वो जो भी प्रॉब्लम रहेगा ना, 10 दिन के लिए नौटंकी किया रहेगा ठीक होने का, 10 दिन होने के बाद वापिस सेम. तो मतलब अगर ऐसा कोई प्लेयर एडामेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको लेके खेलना क्यों है ब्रो? तुम लोग को ग्रो नहीं करना है क्या किसी को? अगर ग्रो करना है तो ग्रो करने के मेंटालिटी वाले प्लेयर्स को लेके खेलो, सिंपल है. नहीं, मैं बस एक प्लेयर का एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है. ही इज अ यंगस्टर, एससीए का यंगस्टर है, राइट. वी ट्रायल्ड हिम, ही इज गुड, हाँ, हिज हाँ, हाँ. स्टैट्स आर गॉड लाइक, ठीक है. अगर देखने जाएंगे तो मच बेटर देन एनी इंडियन प्लेयर करंटली, राइट. वो इतना ग्रेटफुल था अपॉर्चुनिटी के लिए. वो बंदे ने पूरे कंपनी में जितने लोग हैं सबको 10 बार मैसेज किया रहेगा, सबको थैंक यू बोला रहेगा, सबको बोला रहेगा आई एम सो एक्साइटेड टू वर्क, राइट. जब हम उससे कुछ फीडबैक भी दे रहे हैं, जीरो ईगो से ले रहा है, राइट. एंड आई विल बी ऑनेस्ट, ओपन ट्रायल से कोई इंडियन प्लेयर थ्रू नहीं गया, एंड ही वुड बी वन ऑफ द फर्स्ट पिक्स टू गो थ्रू, राइट. एंड आई एम नॉट सेइंग कि जो भी इंडियन प्लेयर्स उन्होंने ईगो दिखाया या कुछ दिखाया, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग वो being better than most of the players we tried in the open trials,
he's so humble, he's so hungry, he's so willing. तो क्यों नहीं होगा हम लोग को भी मन ऐसे प्लेयर्स को चांस देने का, right? I'm not saying we are going to pick him Yeah. up in the final, depends on the close trials, right? But I'm just giving this as an example, right? Like कि we need to see that hunger. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने ओपन ट्रायल रखे ही इसके लिए कि everyone comes in, does their best. पर अगर वो नहीं दिख रहा है तो we can't, justify picking anyone up. I think the easiest way to kind of give that sense of work ethic would be अगर तुम एक टीम हो या फिर एक और हो जो सोचते हो कि मुझे ये प्लेयर चाहिए ही चाहिए, इसके साथ काम करो, देन इफ द कोच अगर उसको 1% भी लगा कि अरे यार मेरे को इसके साथ काम करना है, लेकिन बिकॉज ही इज बीइंग एम्प्लॉयड बाय यू, वो मान लेगा. लेकिन I feel like if you give that full responsibility to a coach, अगर तुम्हें पसंद भी ना आए, but once you try and do that, like you should trust the coach in IGL more. अगर उनको दे दिया opportunity, I feel like that sense of responsibility कि अभी जो भी रिजल्ट आएगा टीम में वो मेरे सिर पर है, तो मेरे को परफॉर्म करना ही पड़ेगा. Then I feel like they will put in a lot more work because they know that if there is a blame to be put, it will be on them. लेकिन उसी वक्त पे अगर इफ यू हैव अ स्क्वाड ऑफ प्लेयर्स एंड कोच को उसमें इन्वॉल्व ना किया गया हो और कोच बाद में लाके फिर उनको बोला कि ओके दिस इज योर बंच ऑफ मिसफिट्स, देन कोच की मेंटालिटी भी थोड़ी बदल जाएगी. यार अच्छा मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि मेरे प्लेयर्स नहीं थे, मैंने नहीं कुछ किया. सो दैट हैपेंस. आई फील लाइक दैट वन थिंग कैन बी टर्न्ड अराउंड. जी में स्काउटिंग प्रोसेस अभी कैसा चल रहा है? व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द 2025 रोस्टर? पहले मैं चलाता हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता है, सच में कुछ नहीं पता है. मैं खुद अभी इन दोनों से पूछने वाला हूँ इस एपिसोड के बाद. सो या मेरे को भी कुछ नहीं पता है गाइस. देखो ये आ गया झूठ. अच्छा ठीक है, तो मतलब ये मतलब मुझे हिंट लेना चाहिए कि इसके बारे में सवाल करना ही नहीं चाहिए. या आई मीन द थ्री ऑफ अस वर वर्किंग ऑन दिस, बट मैं बोलता हूँ ना, ऐसा मैं नहीं, बोलता हूँ but ना, मैं एक चीज बोलता हूँ. हम लोग ने एक आइडियोलॉजी पकड़ी है. We have stuck to that ideology about whom we want to hire first, how we want to build the team, right? And what qualities we are looking from for the players, right? ये चीजें हम लोग ने सेट की है, and that is something we are working towards, right? And if people don't fit that criteria, right, but are willing to, change, maybe we'll consider. But अगर नहीं है, नहीं दिखता है, then regardless if a player is good, but he doesn't have those things, it's not worth it to pick that player up or pick that coach up or pick anyone up. एनी पर्टिकुलर प्लेयर्स इन एसेंशन जिनके ऊपर आपकी नजर अभी से है? जो नाम आज ले लिए समझ लो. हाँ, बट that is assuming ki they won't be there in their own teams later on as well. That is assuming ki they'll leave their teams. मे बी. just saying hello to टोस्ट. प्लेयर्स उनके अभी हार चुके हैं, तो टोस्ट का अभी शायद TYFS पोस्ट बहुत जल्दी आने वाला है. तो DSG, हाय, हेलो. Final predictions. Who do you think will win Ascension? Kappa, let's start with you. आई थिंक फुल सेंस. Kappa says full sense. क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से खेल रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, और अभी तक तो वो लोग ने फुल कंपोजर के साथ खेला है, और मुझे लगता है कि उनका स्ट्रैट बुक भी बहुत डीप होगा. आई थिंक आई एम गोइंग टू गो विथ SPG. उनके पास ऑलमोस्ट हर मैप के लिए एक से ज्यादा कॉम्प है, डिपेंडिंग ऑन वेदर स्टार्ट ऑन अटैक और डिफेंस. Makes me feel like other teams might not be ready to adapt as quickly. I think Full Sense takes it home. My dark horse is Riddle Order. अगर Full Sense choke कर जाता है and let's say Riddle Order makes it to the finals, I think they will beat SPG this time around. I will put my prediction on SPG, even though मैं दिल से चाहता हूँ Full Sense जीते, because I've been seeing those players for a long time, and even though I want them to win, I don't know if they will be able to win. Thank you so much for tuning in. I hope कि आप जैसे ये podcast देख रहे हो वैसे ही आप Ascension भी देखोगे, and follow the journey of our team next year, because we are going to be coming up with a lot more updates in the next few weeks, and we'll keep you guys informed about that. Thanks for watching, and we will see you next time. Tune in to VCT Ascension Pacific for more action.